برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز. آرمی چیف مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے. سپہ سالار کو سلامی دی گئی. 41 غیر ملکی کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے. پاکستان ملٹری اکیڈمی کے عبداللہ اور مشتبہ بھی شامل. جنرل قمر جاوید باجوہ نے پریڈ کا معائنہ کیا. تقریب سے خطاب کیا. بولے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات باہمی دوستی اور احترام پر مبنی ہیں. Pakistani cadets would also be graduating with you today. Let me say that I am very proud of you all as I am proud of them. Ladies and gentlemen, my presence here today bears testimony to the deep-rooted relationship that exists between Pakistan and the United Kingdom, based on mutual respect and shared values, which have been carefully nurtured by both nations over many decades. پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارت کے تاریخی معاہدے پر دستخط. وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک کمپنیز کو سولر پاور سیکٹر میں بھی سرمایہ کاری کی دعوت دے دی. یقین ظاہر کیا کہ 3 سال میں دونوں ملکوں کا تجارتی حجم $5 ارب تک پہنچ جائے گا. وزیر اعظم نے کہا معیشت لہولہان ہے. ایسے وقت میں تیل کی خریداری پر سالانہ 20 ارب خرچ کرنا حماقت ہے. We were also dealing with very serious challenge of putting our economy, first protecting it from getting out of control. We are, by the grace of God, we have been able to save our economy from a serious default. I would say, and use the word wasted, in financing our very expensive fuel. We cannot afford this kind of bill. $20 billion in a year. I mean, our economy is bleeding. ہم نے حساب کتاب رکھا اسی لیے پکڑے گئے. پارٹی سیکرٹری جنرل کے طور پر اسد قیصر اور سیما ضیاء کو اکاؤنٹ کھولنے کا کہا تھا. صدر مملکت عارف الوی کا بڑا بیان. سینئر صحافیوں سے گفتگو میں بولے فوج ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. فوج کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. اسٹیک ہولڈر سے کہتا رہتا ہوں چیزیں ٹھیک نہیں. الیکشن اچھا حل ہے. تمام لوگ مل بیٹھ کر طے کریں الیکشن کب ہونے چاہیے. صدر مملکت نے کہا عمران خان ان کے لیڈر اور دوست ہیں. واٹس ایپ پر رابطہ رہتا ہے. جتنی ملاقاتیں اور گفتگو میاں شہباز شریف سے ہوئی اتنی بطور وزیر اعظم عمران خان سے بھی نہیں ہوئی. موجودہ حکومت کی 85 سمریاں آئیں, صرف 4 یا 5 کو روکا. صدر مملکت نے کہا کہ ان کے پاس تو ایک ہی آئینی بندوق ہے, اس سے چڑیا مار سکتا ہوں یا پھر اس پر میزائل لگا لوں. زمانے میں ننگے ہو گئے تو اب ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے کہ صدر عارف الوی اور باقی سارے لوگ تسلیم کر لیں, کیونکہ تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. مگر تسلیم کرنے سے جرم کم نہیں ہوگا, اس کی سزا ضروری ہے. صدر کے پاس فورن فنڈنگ سے متعلق اعتراف کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں, اب تو سزا ملے گی. طلال چودھری کا رد عمل. بولے عمران خان امریکہ سے تعلقات کے لیے کوشش کر رہے ہیں. چھپ چھپ کر امریکی سفیر کو ویڈیو کالز کر رہے ہیں. صوبائی حکومتوں سے معافی دلوانے کا کہہ رہے ہیں. فورن فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے نے 4 بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کر لی. نوٹس کے باوجود سیما ضیاء پیش نہ ہوئی. عمران اسماعیل اور سیما ضیاء کی تحقیقات روکنے کی درخواست سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کر دی. عمران اسماعیل بولے ہمارا غیر ملکی رقوم کا کیس صرف $18,000 کا ہے. سابق گورنر سندھ نے دعویٰ کیا کہ 1 ماہ میں عام انتخابات کا اعلان ہو جائے گا. امریکی سازش کا الزام لگاتے ہیں, پھر انہی کو راضی کرنے کے لیے لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال نے پی ٹی آئی کی جانب سے امریکی لابنگ فرم کی خدمات حاصل کرنے کا معاہدہ ٹویٹر پر شیئر کر دیا. لکھا عمران خان امریکہ سے ترلو اور معافی پر اتر آیا ہے. پہلے ایلچی بھیجے, پھر سفیر سے منت سماجت کی, اب لابنگ فرم ہائر کر لی. کپتان کے کتنے چہرے ہیں, کمپیوٹر بھی پریشان ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. امریکی فرم سے کیے گئے معاہدے کا اردو ترجمہ کروانے کا کہہ دیا. یہ لابی فرم نہیں, میڈیا ریلیشن شپ کی فرم ہے. پی ٹی آئی یو ایس اے نے میڈیا میں اپنے نقطۂ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے انگیج کیا. فواد چودھری کی وضاحت. بولے ان کمپنیز کا کام میڈیا اور پارٹی میں تعلقات بہتر بنانا ہوتا ہے.
बगावत पर उकसाने का इल्जाम। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की नजर सानी की अपील भी खारिज। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मुल्जिम हाई प्रोफाइल है, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। शहबाज गिल का ट्रांसक्रिप्ट इदारों के खिलाफ है। FIA की फॉरेंसिक रिपोर्ट मुस्बत आई है। तफ्तीशी अफसर ने बताया ऑडियो प्रोग्राम की CD हासिल कर ली जो मैच कर गई। पुलिस ने शहबाज गिल का तशद्दुद करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत मंजूर। PTI रहनुमा ने फौज की मदद से राय की, केस को सियासी इंतकाम कह दिया। कोई गैरतमंद पाकिस्तानी कभी अपनी फौज के खिलाफ नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने IG इस्लामाबाद को शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनी गाला पर छापा मारने से रोक दिया। शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी की गिरफ्तारी पर भी नाराजगी का इजहार किया। वजीर दाखिला ने सऊदी अरब से IG इस्लामाबाद से राब्ता किया, केस की तफसीलात हासिल की, बनी गाला के मकीनों से बात करके ड्राइवर की हवालगी का मामला हल करने की हिदायत। शहबाज गिल साहब ने बातें कही है, वो चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो कोई इंडिपेंडेंट एक्टर नहीं थे। आपने उनसे निराश किया, आपने कहा है कि हम गैर मशरूत माफी मांगते हैं। इनको तो मुल्क व कौम से तहरीरी गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। शहबाज गिल के बयान पर तहरीक इंसाफ कौम से माफी मांगे। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती है इमरान खान ने अमरीकी सफीर से खुद बात की, ऐसा नहीं तो वजाहत क्यों नहीं करते। अमरीका में साख बेहतर करने के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल की, मगर यहाँ लोगों को कुछ और बोला जा रहा है और वहाँ कुछ और चल रहा है। यहाँ कुछ और बोला हुआ है लोगों को और वहाँ ये चल रहा है। तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में एक लॉबिस्ट फर्म एंगेज की अपनी वहाँ साख बेहतर करने के लिए, अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए $25,000 हर महीने ये देंगे। तो आपको अमेरिका में एडवर्टाइजिंग की क्या जरूरत पड़ गई। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वाले 50 अफराद को नोटिस जारी। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तहकीक के मुताबिक 2 माह के दौरान 21 काबिले एतराज हैशटैग्स बनाकर इदारे की साख को नुकसान पहुंचाया गया। ट्रेंड चलाने वाले ज्यादातर अकाउंट PTI हुकूमत के खात्मे के बाद बने। बैरून मुल्क से भी ट्वीट्स को रीट्वीट करवाया गया। से भी ज्यादा कान डालना है, वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फराउज के, अच्छा जी, कान डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ठीक है, लैंड है, ठीक है, ठीक है जी। हुजूरी का इनाम दिया, ओहदे से नवाज दिया। साबिक खातून अव्वल के मंजूर नजर PTI सोशल मीडिया के हेड अरसलान खालिद को वजीर आला पंजाब का मुआविन खुसूसी बना दिया। तनख्वाह अलाउंसेस और सरकारी मराद दी जाएंगी। बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की मुखालिफिन को गद्दार करार देने से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो चंद हफ्ता पहले ही सामने आई थी। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, कौमी परचम से भी ऊपर पार्टी झंडा लगा दिया। तहरीक इंसाफ के अनोखे काम, जलसे से पहले गुलबर्ग और जेल रोड समेत दीगर शाहराहों पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने झंडे लगाए। तहरीक इंसाफ ने परचम एहतराम ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की तो नून लीग ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। PTI के इक़दाम को काबिल मजम्मत करार देकर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हॉकी ग्राउंड में PTI का जलसा रोकने की सजा मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया पंजाब हुकूमत यकीनी बनाए कि जलसे के दौरान कोई नुकसान न हो। साबिक ओलंपियन समी अल्लाह ने खेलों को सियासत से अलग रखने का मुतालबा कर दिया। बोले हॉकी स्टेडियम से ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जलसे करने ही है तो कज़ाफी स्टेडियम या किसी और जगह करें। परवेज इलाही को वजीर आला करार देने का मुख्तसर फैसला वापस लिया जाए। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में फुल कोर्ट तश्कील न देने के फैसले के खिलाफ हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। 21वीं तरमीम केस में 8 जजेज ने पार्टी सरबराह को अहम तरीन शख्स करार दिया। 3 रुकनी बेंच लार्जर बेंच के फैसलों का पाबंद होता है। हुकूमत की कोशिशें रंग लाई, दिवालिया होने का खतरा टल गया, आपका कर्जा मंजूर हो गया। IMF ने कबूलियत का खत पाकिस्तान के हवाले कर दिया।
वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और गवर्नर स्टेट बैंक दस्तखत करेंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 24 या 25 अगस्त को होने का इम्कान। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 17 करोड़ डॉलर कर्ज की हतमी मंजूरी होगी। अच्छी खबर आते ही रुपया मजीद तगड़ा और डॉलर को रगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए 39 पैसे सस्ता, 215 रुपए 49 पैसे पर आ गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 614 पॉइंट्स का इजाफा। सैलाब की तबाहकारियां, अपर कोहिस्तान दासू में नाला बिफर गया, पुल बह गया। शाहराह कराकरम पर गिलगित बल्तिस्तान जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल। सियालकोट में मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। मंडी बाउद्दीन में हेड कादराबाद पर पानी के बहाव में इजाफा। भारत की आबी जारियत, नाला डेक में छोड़ा गया पानी देहात में दाखिल। मरकजी शाहराहें बंद, बड़े रकबे पर फसले तबाह, रिहायशी परेशान। इंतजामिया और पाक फौज मदद को पहुंच गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। यूनिवर्सिटी रोड, स्कीम सेफ्टी, पुलिस जौहर, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियारी और औरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। मेरे हम वतन सुनो, मेरे हम नवा सुनो, ये वतन मेरा घर है। आजादी के 75 साल, मुल्क भर में तैयारियां जोरों पर। डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में कौमी असम्बली में तकरीब सजी। अरकान असम्बली की नशिस्तों पर मुस्तकबिल के मेहमान बराजमान हुए। जोशीली तकारीर पर शुरका ने डाइस बजाकर खूब दाद दी। हम जिंदा कौम हैं, हम इस मुल्क की आन बान शान है। हमारा वतन है तो हम हैं। शहीदों की ज़मीं है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीं है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। पाकिस्तान जिंदाबाद। झाड़ फूंक कर ले, काला जादू कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। काला लिबास नहीं, काला जादू। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ उठने वाली आवाज नरेंद्र मोदी को एक आंख न भाई। बोले कुछ लोग काले जादू में फंस गए। कांग्रेस कितना ही काला जादू कर ले, अब जनता एतमाद नहीं करेगी। राहुल गांधी ने कहा अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए काला जादू जैसी बातें करने वाले वजीर आजम के ओहदे का वकार न गिराएं, मुल्क को मत भटकाएं, जवाब तो देना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीदरलैंड्स पहुंच गई। 3 वनडे इंटरनेशनल खेलेगी। 16, 18 और 21 अगस्त को इन एक्शन होगी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं नीदरलैंड्स की टीम को होम ग्राउंड पर हल्का नहीं लेंगे। और अरशद नदीम नेजा उठाए मैदान में आए, फिर छा गए। इस्लामिक गेम्स में 88.55 मीटर लंबी थ्रो करके पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फिर गोल्ड मेडल जीत लिया।